Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Mike is over to roll number 92, Kainat Ansari for reading from section 28. Ji. Place for registering documents relating to land. Point 1. Document mentioned in section 17 subsection 1 clause A, B, C, D and E, section 17 subsection 2 and section 18 in so for as such document affects immovable property shall be presented for registration in the office of a sub registrar within whose sub directed the whole or some operation of the some Some. portion of the property which such document relates is situate. जी नंबर वन के जो आपके पास कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटिंग टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो सेक्शन 18 में है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होल प्रॉपर्टी या उसका कोई पार्ट उसका कोई पोर्शन अगर किसी सब डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहा है तो हम उस सब डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहां पे रजिस्टर करवाएंगे क्लियर Yes sir. जी Subsection 2. Notwithstanding anything contained in subsection 1, after a document is registered, no party thereto shall be entitled to question the validity of its registration on the ground that the property which purported to give jurisdiction to the sub registrar to the register it either did not exist or was uh, fictitious or insignificant or was not intended to be conveyed and a, ठीक uh, जी पढ़ें a document the registration of which is secured by the inclusion of a non-existent fictitious or insignificant portion or item shall not in any manner if affect the right of a person who was not a property party thereto and acquired right in the property without notice of the transaction to which such document related. कहना ये हमने पढ़ लिया था आई थिंक ये देखें Yes sir, हमें भी याद आ रहा है. जी सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मूव टू अनदर पार्ट Yes sir. Section 32. फ्रॉम सेक्शन 36 सर 40 से स्टार्ट करेंगे अब. अच्छा 40 से स्टार्ट करेंगे सर 38 तक लास्ट टाइम मार रीडिंग गई. यस Section 40. 41 भी कर लिया था सेक्शन 41 कर लिया था 42 से स्टार्ट करेंगे नाउ आई एम रिमेम्बरिंग Okay, sir. Section 42. Deposit of wills. यस Any testor may either personally or by a duly authorized agent deposit with any registrar his will in and sealed covers superscribed with the name of the testor and that of his agent, if any, and with a statement of the nature of the document. जी तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये जमा करवाएगा वो या तो खुद या थ्रू एन एजेंट और उसके ऊपर ये लिखेगा कि ये मेरी विल है या ये किस नेचर की डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल विल किसके लिए फॉर वर्षा के लिए विल कर रहा है या उसे किसी क्या कहते हैं वक्फ करना चाह रहा है क्या द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो भी स्टेटमेंट के साथ वो जमा करवाएगा इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार और वहाँ पे वो अपनी विल डिपॉजिट करवाएगा Subsection 2. The testar shall also endorse on the cover the name and address of the person to whom the original document shall be delivered after registration thereof after his death. तो वहाँ पे लिखेगा कि अगर ये बंदा मर जाए जो टेस्टार है जो अपना विल बना रहा है सो उसके बाद ये किसको दे दिया जाए सो उसके बाद दोबारा उस एनवलप को बंद कर देगा राइट Yes, sir. जी मूव ऑन Section 43. Procedure on deposit of will. On receiving such cover, the registrar, if satisfied that the person presenting the same for deposit is the testar or his agent, shall
subscribed in his registrar book. Number 5, the superscription aforesaid and shall note in the same book and on the superscription and on the said cover the year, month, day, and hour of such presentation and receipt, and the names of any person who may testify to the identity of the testar of his agent, and any legible inscription which may be on the seal of the cover. जी, तो प्रोसीजर क्या है, जब रजिस्ट्रार को डिपॉजिट विल मिल रहा है तो वो क्या करेगा, अगर वो इस बात पे सेटिस्फाइड है कि ये जो टेस्टार है वो खुद है या उसका एजेंट है, तो वो फिर बुक नंबर 5 में, जो कि रिलेटेड टू द डिपॉजिट ऑफ विल है, वहाँ पे मेंशन करेगा कि भाई कौन से डेट, कौन से तारीख, कौन से साल, कौन सी तारीख, कौन से मंथ, कौन से साल में इसको प्रेजेंट किया गया, और द नेचर ऑफ पर्पस ऑफ द विल वो क्या है, ए टू जी वो सारी चीजें जो है ना वो उस बुक में रजिस्टर करेगा। और जो इन्वेलप होगा या जो कवर होगा, सो उसको दोबारा फिर वो बुक नंबर लगाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बुक में हमने एंट्री की है और वो है हमारे पास सीरियल नंबर 9, तो हम उस कवर के ऊपर लिखेंगे कि सीरियल नंबर 9 ऑफ बुक 5। सो फिर इसको रेफर करने में हमारे लिए इजी हो जाता है कि लेटर नंबर 9 बिलोंग्स टू होम, या लेटर नंबर 9 जो है वो अब्दुल बासित ने जमा करवाया था विल के लिए, अब ये विथड्रा कर रहा है। तो हम वहाँ पे देखेंगे कि आया इन्होंने खुद जमा करवाया था या इसके अथोराइज्ड एजेंट ने विल करवाया था, या क्या प्रोसीजर था, हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया था। फॉर एग्जांपल वो खुद आया था लेकिन वी वर नॉट सेटिस्फाइड दैट द पर्सन प्रेजेंटिंग द विल इज टेस्टर और नॉट, तो फिर हमने क्या किया, दो और लोकल पर्सन को बुला लिया और कहा कि जनाब आप इन्हें आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने भी इसे आइडेंटिफाई कर दिया तो हम उनके भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इन्होंने इनको रजिस्टर कर लिया। इज इट क्लियर? Sir, यस yes, the question है जी। सर, आफ्टर डेथ जो टेस्टार है उसकी डेथ के बाद अगर कोई भी पर्सन उस फाइल को दोबारा या उस डॉक्यूमेंट को दोबारा खुलवाना चाहते हैं तो वो इस प्रोसीजर के तहत खुलवाएगा। यस, एंड सेकंडली के जो विल होगा ना वहाँ पे मेंशन किया होगा कि मेरे मरने के बाद फलां बंदे को एग्जीक्यूट कराने का राइट दिया जाए, राइट। तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे के पास ये अख्तियार होगा कि वो आए और उसको विल को जो है ना वो उसे डिलीवर करेंगे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विल। अब ऐसे नहीं है कि विल मैंने जमा करवाया और मैंने कहा कि मेरे मरने के बाद अब्दुल बासित जो है वो आएंगे और मेरे विल को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आप आ जाएं कि इदरीस ने जो विल किया था उनकी डेथ हो गई, अब आप मुझे उनकी डिटेल्स दे दें कि उन्होंने किस किस के नाम पे किया और मेरा उसमें कितना राइट बनता है, तो आपको अलो नहीं किया जाएगा। ओके सर। द क्लॉज सबसेक्शन 2 द सर रजिस्ट्रार काइंडली ने के थोड़ो रिपीट कजो। कंहिंखे बाबा? सर जेको टेम वेल जे बारे में वो त कंहिंखे उहो कंहिंखे उहो ॾेखारे सघंदा या कंहिंखे इजाज़त हूंदी त उहे मालूम करे सघंदा, या जेकॾहिं वेल माण्हू डिपॉज़िट कराए थो त पोइ ॿियनि खे कीअं ख़बर पवंदी उन्हनि जे जेके इंटरेस्टेड पर्सन हूंदा, जंहिंखे या रजिस्ट्रार उन्हनि खे पाण ॿुधाईंदो या उहे पाण अची मालूम कंदा? आपने काफ़ी अच्छी डिस्कशन की है और यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी कंपलसरी डॉक्यूमेंट के ज़ुमरे में आती है या ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आ रही है। अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है कंपलसरीली में तो डेफिनेटली मेरे मरने के बाद मेरे वर्सा आएंगे रजिस्ट्रार के पास या कंसर्न सब रजिस्ट्रार के पास जनाब कि अब आप क्या करें, प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफ़र करें हमारे नाम पे बीइंग लीगल हेयर्स। तो वो कहेगा जनाब आपके नाम पे हम कर देते हैं लेकिन हमारे ऑफिस के रिकॉर्ड में इस बंदे का एक विल पड़ा हुआ है, पहले विल को इम्प्लीमेंट करवाएंगे उसके बाद आपकी तरफ आएंगे, आपको प्रॉपर्टी बाद में मिलेगी। तो फिर वहाँ पे वो उन्हें डिटेल देंगे कि फलां बंदा जो है वो एग्जीक्यूटेंट है।
और फलां बंदा जो है वो ऑथराइज्ड है कि वो आके इसको एग्जीक्यूट करवाए। इज इट क्लियर आमिर? जी सर, ठीक है। जी सर पढ़ें आगे। जी जी The subsection 2, the registrar shall then place and retain the sealed cover in his fireproof box. जी। तो उसके बाद उसे फायर प्रूफ बॉक्स में रख दिया जाएगा जो कि रजिस्ट्रार के पास अवेलेबल होता है। Section 44, withdrawal of sealed cover deposit under section 42. जी If the testator who has deposited such cover wished to withdraw it, he may apply either personally or by duly authorized agent to the registrar who holds it in deposit, and such registrar, if satisfied that the applicant is actually the testator or his agent, shall deliver the cover accordingly. जी। अगर आप को ये लग रहा है, पहले आपने कहा कि जनाब मैं ये प्रॉपर्टी अपने स्टूडेंट्स के नाम पे करूँगा क्योंकि ये बहुत फरमान बरदार है और मेहनती है। आपकी ज़िंदगी में आपको पता चला कि इनके ये कारनामे हैं, तो आपने अपना इरादा जो है वो चेंज कर लिया। तो फिर आप जाएंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में, या वो जो हमने फलां नंबर पे या फलां बंदे के नाम पे जो मैंने विल डिपॉजिट करवाया था वो काइंडली मुझे वापस कर लें, आई वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। तो वो अगर ये सेटिस्फाई हो रजिस्ट्रार के, या तो वो रजिस्ट्रार खुद है या उसका ऑथराइज्ड एजेंट है, तो फिर उसे वापस कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो उसके बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रहती। जी The section 45, proceeding on death or depositor. Subsection 1, if on the death of a testator who has deposited a sealed cover under subsection 42, application be made to the registrar who holds it in deposit to open the same, and if the registrar is satisfied that the testator is dead, he shall in the applicant's presence open the cover and at the applicant's express cause expenses cause the contents thereof to be copied into this book number 3, and then deliver the deposit will to the nominee of the testator or his representative. जी। अगर वहाँ पे कोई नॉमिनी है तो हम उसे देंगे, अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो हैंड ओवर करेंगे, और उसके जितने भी कंटेंट्स होंगे वो सारे पहले बुक 5 में हमने रजिस्टर किए थे, अब हम बुक नंबर 3 में उसको रजिस्टर करवाएंगे। इज इट क्लियर? Yes sir. ओके सर जी सर, अगर किसी ने विल डिपॉजिट कराई हो, जी वो बंदा अगर मर गया हो और जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं कि इस बंदे ने विल डिपॉजिट कराई थी, तो अगर रजिस्ट्रार कहे कि इस बंदे ने जो विल थी वो विथड्रॉ कर दी थी, जी और हमें पता है कि उसने विथड्रॉ नहीं की थी, तो इसके हिसाब से क्या होगा? आप कोर्ट में केस आप केस लाज आप इसमें केस फाइल करेंगे, राइट? और उसके बाद क्या होगा कि वो ये वेरीफाई करेंगे कि उसने जब डिपॉजिट करवाया था तो डेफिनेटली उन्होंने सिग्नेचर किया था, और जब विथड्रॉ किया था तब भी सिग्नेचर किया होगा। सो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, सिंपल। जी ओके सर। ओके, कैनॉट मूव ऑन। If in respect of any will deposit no step are taken by the testator or other person under section 44 or subsection 1 of this section, the registrar shall follow the procedure hereinafter provided for the deposal of such will or sealed cover. जी, सो 45 में विथड्रॉवल है, अगर उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया तो फिर ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अगर उसने विथड्रॉ कर लिया तो फिर
बुक नंबर 3 में हम लिखने की जरूरत नहीं है। जी। Section 46 Saving of certain enactments and power of court. Subsection 1 Nothing herein before contained shall affect the provisions of Section 294 of 294 Succession Act. 294 of the Succession Act 1925 and this one, or the power of any court by order to compel the production of any will. जी, move on. Subsection 2 Where any such order is made, the registrar shall, unless the will has been already copied under section 45, open the cover and cause the will to be copied into his book number 3 and make a note on such copy that the original has been removed into the court in pursuance of the order aforesaid. Just 1 second, let me check the section. What is section 294 of the Succession Act? Let me check that one. Succession Act. 294, 293, 291 Succession Act. Two 94. और मेरे पास जो सक्सेशन एक्ट शो हो रहा है उसमें टोटल जो सेक्शन है वो 264 है। ओके, मूव ऑन, आगे चले कि ये सिर्फ इतना कह रहा है कि जो सेक्शन 294 है या किसी कोर्ट की आर्डर को ये इन्फोर्स करवाने से रोक नहीं सकती। अगर कोई कोर्ट आर्डर करे कि जनाब आप इस विल को प्रोड्यूस करें कोर्ट में, तो वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। 294 मिल गया जी, क्या इसमें लिखा हुआ है फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल विल्स ऑफ विच प्रोबेट और एडमिनिस्ट्रेशन विद विल अनेक्स्ड ग्रांटेड। इसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 एवरी डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट डेलीगेटेड shall file and preserve all original wills of which probate or letters of administration with the will annexed may be granted by him among the records of his court until some public registry for one will is established. And the subsection 2 the provisional government shall make regulation for the preservation and inspection of the wills so filed. जी, पहले तो हमने कहा कि हम उसकी विल को इंस्पेक्ट वगैरह किसी बंदे के थ्रू नहीं करवा सकते और ना ही उसको ओपन करके प्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी फोरम पे, मगर 294 में डिस्ट्रिक्ट जज या कोई और जो एम्पावर हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद भी रूल बना सकती है कि हम उसे इंस्पेक्ट करें, या कोई आर्डर है किसी भी कोर्ट का फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सेम बिफोर एनी फोरम, तो हम उसे फिर भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उस आर्डर पे इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए कंपलसरी होगा। Okay, sir. जी, Now section 46A. अच्छा सर, सिंपली ने मकसद ये होता था सर कि सिंपली इसका मकसद ये हुआ कि रजिस्ट्रार जो है वो कोर्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकती कि जनाब मैं आपको ये नहीं दूंगा, विल जो है ना आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेक्शन है सॉरी जो प्रोविजन है रजिस्ट्रेशन एक्ट के वो मुझे मना कर रहे, वो इस बात का सहारा नहीं ले सकती। अच्छा सर, मैंने उन्होंने की वो पावर आए तो वो इंस्पेक्ट करे सकते। यस, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने कोर्ट में बुला सकते हैं और वहां पे ओरिजिनल रख सकते हैं। जी, Section 46A.
destruction of wills. 46 तो पढ़ लें। Subsection. So 46 में ही तो लिखा हुआ था ये सारा। अच्छा सॉरी 46 से। Yes sir. 46A, destruction of wills. Subsection 1, any will is deposited with a registrar at the commencement of the registration amended ordinance 1962, and any will thereafter deposit any may by destroyed after following the procedure hereinafter, provided the will is not registered before such destruction. No. Any will in deposit with registrar at the commencement of registration 1962, and any will thereafter deposited may be destroyed after following the procedure here after provided. नीचे दी गई प्रोसीजर को अपनाते हुए हम उस विल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब वो प्रोसीजर क्या है, पढ़ें। Every registering officer shall on the first day of July in the year next after commencement of the registration amended ordinance 1962, and on the first day of the July in every succeeding third year, send by post a notice to every depositor and his nominee inquiring about the depositor's present address, and shall enter on the cover and his registrars any new address supplied in response to such notice. हम उन्हें और उनके नॉमिनी को एड्रेस करेंगे कि जनाब ये जो डिपॉजिटर हैं या ये जो रजिस्ट्रार हैं उनका कोई एड्रेस क्या है, क्योंकि पहले एड्रेस 1962 से पहले उनका एड्रेस नहीं था। वो जो भी एड्रेस बताएंगे वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। दिस इज़ क्वेश्चनेबल कि हम उसे एड्रेस कैसे करेंगे। ये एक फॉर्मेलिटी थी जो इन्होंने कंप्लीट कर ली। जी Okay, sir. Subsection 3, if as a result of such notice or in any other manner the registrar is satisfied that the testator has died, the registrar shall, after making an entry in his book as to the death of the testator and nature of information on which he has acted, upon the cover in the ओपन द presence of okay, presence of open the cover in the presence of judicial हेलो सर, सर अचो भले। हाँ अचो अचो। may determine information them about the existence of the will, and also that unless steps are taken within a period of 6 months therefrom for registration of the will, the document shall be liable to be destroyed. Just 1 second, your message अब्दुल्ला ओके के उस विल को अगर ये ऑन रिस्पांस अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो रहा है कि जो ट्रस्टार था या जो डिपॉजिटर था उनकी डेथ हो गई, तो वो एटलीस्ट जुडिशियल ऑफिसर जो कि सिविल जज हो, उससे बिलो रैंक का ना हो, सो वह उनके प्रेजेंस में उसको ओपन किया जाएगा, राइट। और उसके बाद जो भी होंगे वो बाकी प्रोसीजर बाद में अपनाया जाएगा, और उसके बाद एग्जीक्यूटर को नोटिस किया जाएगा या किसी और पर्सन को जिसको बेनिफिट होगा तो उसे भी हम नोटिस देंगे कि भाई आप आएँ और आप आके अपना इंटरेस्ट या अपना हिस्सा भला 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 ले लें विद इन 6 मंथ। और अगर 6 मंथ के अंदर कोई नहीं आया तो उसके बाद हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। सर यहाँ पे ना शायद हमारी बुक में ही लिखा हुआ है, मनसिफ वर्ड लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ये भी पहले क्या था, पहले भी ये सिविल जज के बराबर था, सिविल जज आर मुंसिफ। अच्छा मुंसिफ जी, ये भी एक जुडिशियल ऑफिसर में रैंक था। ये इंडिया का, इंडिया से हमने कॉपी करके उठा लिया। ओके जी सबसेक्शन 4 या notwithstanding the expiry of the period specified in the notice until the will is actually destroyed in accordance with the provisions of the Destruction of Records Act 1917, the registration of the same can be effected at the request of the person entitled thereto on payment of the proper charges. जी, अगर हम उसे उस पीरियड में, ये टाइम मेंशन है कि जनाब आप इसे डिस्ट्रॉय करें जो कि डिस्ट्रक्शन रिकॉर्ड एक्ट 1917 में है, मगर
तब तक रजिस्टर को उस रजिस्ट्रेशन को इफेक्ट किया जा सकता है जब तक कोई भी बंदा अगर उसके मुताबिक इंटाइटल्ड है, बेनिफिशियल है, और वो कह रहा है कि जनाब जो भी कस्टडी चार्जेस होंगे, इसके ख्याल करने के जो भी चार्जेस होंगे वो मैं प्रोवाइड करने को तैयार हूं, तो हम उसे तब तक डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट कर दें प्लीज। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है, उसने आके एप्लीकेशन दिया कि जनाब नो डाउट 6 मंथ जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं, मगर फिर भी आप इसकी रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रॉय ना करें, इसे मेंटेन करें, आई विल प्रोवाइड द चार्जेस। मैं आपको चार्जेस दे रहा हूँ जो आपकी कस्टडी के या दूसरे चार्जेस या जो भी चार्जेस हैं गवर्नमेंट चार्जेस वो मैं पे कर रहा हूँ, आप काइंडली इसको डिस्ट्रॉय ना करें। नो डाउट आपने कहा कि हम विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन आप इसे डिस्ट्रॉय ना करें फॉर द रीजंस। फॉर एग्जांपल जो बंदा इंटरेस्टेड है वो बंदा मेरा चचा लगता है और इस वक्त वो जो है दुबई में है, वो जैसे ही आएगा तो वो अप्लाई करेगा, या फॉर द एनी अदर रीजन, मगर यहाँ पे कंडीशन लगाई गई कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड एक्ट के मुताबिक ही अप्रोच करे एंड जो भी चार्जेस या टैक्सेस हों वो गवर्नमेंट को पे करे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, I think we cannot cover the portion part 10 due to shortage of time. चले ये इंशाल्लाह हम थर्सडे वाले दिन कवर करेंगे पार्ट 10, और उसके बाद हमारे पास आएगा पार्ट 11 ऑफ द ड्यूटीज एंड पावर्स, एंड उसके बाद हम फिर थोड़ा जंप करेंगे रिगार्डिंग, उसके बाद हम जंप करेंगे रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ द बुक्स। Right? Okay sir. Okay. Is there any question from today's lecture or yesterday's lecture? No any question? Okay.